Good morning children, welcome to class 1 computers. Children, this is our computer book IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 1. Children, in our previous video we were doing chapter 5, that is turning on or off a computer. So children, in our previous video we learnt how to switch on a computer. Today we are going to learn how to switch off a computer. So children, let us start. So children, this is chapter 5, turning on off a computer. So children, as we know, working on a computer is very important, and before working on a computer we should learn how to switch on or off a computer. So children, here in this chapter we have already studied how to switch on a computer, and today we are going to learn how to switch off a computer. So children, before learning how to switch off a computer, let us revise what we did in our previous video. So children, the topic covered in this chapter is steps to turn on a computer, which we have already done, and steps to turn off a computer, which today this topic we are going to cover today. Before that, let us revise our first topic, that is steps to turn on the computer. So children, in our previous video we learnt how to switch on a computer. So children, computer runs on a electricity. So children, as we know, computer is a man-made machine and it works on electricity. That is why it is known as electronic मशीन. कंप्यूटर मैन मेड डिवाइस है या मशीन है, इस वजह से हम इसे मैन मेड मशीन कहते हैं, और जो कंप्यूटर है उसे काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई चिल्ड्रन वी कॉल इट एज electronic machine. So in the first chapter, the definition which we have learnt about computer is, what is computer? We learnt computer is an electronic machine. So children, this electronic words comes from electricity. As the computer works on electricity, we call it as electronic machine. Similarly children, today we are going to learn about how to switch on a computer. Last video में हमने पढ़ा था. I hope you all have understood, and today we are going to revise it once again. So the topic is turning on a computer. So children, before doing any work on the computer, it is very important to know how to switch on a computer. अगर हमें switch on करना ही नहीं आएगा तो we cannot do any work on a computer. Even though computer is very important machine and it is in some ways children, it is better than us also. हमसे जल्दी काम करती है, हमसे ज़्यादा काम करती है, बिना थके काम करता है. सो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा है एंड वी नो ऑल्सो. फिर भी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस फॉर switching it off and giving the commands to do any work or giving instructions to do any work. तो in that, जब भी हम काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा. तो उसके लिए चिल्ड्रन, let us revise what we had studied in our previous video. Previous video में मैंने आपको बताया था कि as computer works on electricity, तो first of all we have to plug in the कंप्यूटर. पहले हम उसे, जो उसका प्लग है उसे ऑन करना पड़ेगा. हियर यू कैन सी द प्लग चिल्ड्रन, दिस इज द प्लग ऑफ कंप्यूटर, एंड यूजिंग दिस वायर द इलेक्ट्रिसिटी passes through this wire in the computer. Now if you have already plugged it in, you have to just switch on the computer using this switch. सबसे पहले आपको प्लग इन अगर किया हुआ है तो आपको सिर्फ ये स्विच ऑन करने की ज़रूरत है और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा. उसके बाद चिल्ड्रन, एज वी नो इट इज़ अ डेलिकेट मशीन. कंप्यूटर बहुत ही डेलिकेट होता है. अगर थोड़ा सा भी हम केयरफुली उसे ना हैंडल करें तो प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज़ वाई चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द कंप्यूटर बाय फॉलोइंग सर्टन स्टेप्स. तो हम सीधा कंप्यूटर को ऑन करके हम उसे पे काम नहीं कर सकते. बहुत सारे प्रोसीजर्स है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर दीज प्रोसीजर्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो
in these 7 steps. We have studied 7 steps, we have followed 7 steps to switch on the computer. तो ये 7 steps क्या है? We already know, let us revise it. तो सबसे पहले this is first step children. In first steps, turn on the electronic switch from the electric board. पावर बोर्ड जो होता है वहाँ से हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड से स्विच ऑन करेंगे कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिले. वंस द कंप्यूटर गेट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद चिल्ड्रन एज वी नो, इफ़ यू डोंट if you do something on the computer, the electricity or the power supply may cut off in between. So whatever you do on the computer, it may get interrupted. मतलब अगर आपने सेव किया है तो ठीक है, लेकिन नहीं सेव किया है तो, और फिर आपका काम भी रुक जाता है. ठीक है, तो अगर आपने नहीं सेव किया है तो वो डिलीट हो जाएगा. और डिलीट अगर आपने सेव भी किया है तो आपका काम, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती आपका काम रुका रहेगा. तो इसीलिए चिल्ड्रन वी हैव अनदर ऑप्शन इन द कंप्यूटर्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि हमारे घर में हमने पढ़ा है कि हमारे घर में बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है. इन केस लाइट चली जाती है तो कब इन्वर्टर स्विच ऑन हो जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी घर की पूरी पावर सप्लाई इन्वर्टर के थ्रू हो जाती है, वी डोंट इवन रियलाइज़, हमें समझ में भी नहीं आता. सो हमारे स्मूथली कंप्यूटर के काम को चलने के लिए या हमारे वर्क को स्मूथली चलने के लिए वी अटैच यूपीएस. यूपीएस भी एक पार्ट है कंप्यूटर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम ये यूपीएस कंप्यूटर से अटैच नहीं करेंगे तो हमारा वर्क, वी कांट do any work continuously without interruption on the computer. So this is the part of computer, or it is something which helps computer to work uninterrupted. That is why children, इसके काम के हिसाब से इसका नाम है uninterrupted power सप्लाई, यूपीएस. इसलिए हम इसको यूपीएस कहते हैं. बिना किसी रुकावट के ये कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. जब भी मेन सप्लाई की लाइट चली जाती है तो यूपीएस जो है कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता, बल्कि जो भी काम चल रहा है इट कंटिन्यूस गोइंग ऑन, और इससे हमारे काम में भी कोई रुकावट नहीं आती. नहीं तो अगर यूपीएस नहीं रहेगा तो वी हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू कम, और तब तक हम कोई भी काम उस पर नहीं कर सकते हैं. जो भी काम कर रहे थे वो रुक जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप विदाउट एनी इंटरप्शन यू वांट टू वर्क ऑन कंप्यूटर, यू हैव टू स्विच ऑन द यूपीएस. तो सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करेंगे. सेकेंड स्टेप इज़ टू स्विच ऑन द यूपीएस. तो हमने यूपीएस भी ऑन कर दिया. तो चिल्ड्रन यू कैन सी अ स्मॉल बटन ऑन दिस यूपीएस. यू हैव टू जस्ट स्विच इट ऑन एंड कंटिन्यू डूइंग वर्क ऑन द कंप्यूटर. और उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास है, हमने ऑन किया है तो हमें बीच में लाइट जाने पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है यूपीएस के ऊपर फिर हो जाएगा, और फिर यूपीएस विल सपोर्ट द पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर, और वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर विल नॉट बी इंटरप्टेड. देन चिल्ड्रन दिस इज़ अनदर स्टेप. In third step children, we have another important part that is called CPU. As we know children, CPU is the brain of a computer. Same as our body totally depends upon our brain. जो भी हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी को, उस हिसाब से बॉडी वर्क करता है. अगर हमारा दिमाग हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो हम भी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है. तो इसीलिए हमारा दिमाग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का. सिमिलरली CPU इज़ another important part of the computer, without which a computer cannot perform even a single work. तो ये जो CPU होता है, as we have studied in earlier chapters or previous chapters, that computer CPU is the brain of the computer. Can you imagine your life without a brain children? आपके अगर बॉडी में ब्रेन नहीं रहेगा, सर में ब्रेन नहीं रहेगा, तो क्या आप कोई काम कर पाओगे? नो. जो हम खाते हैं, जो हम अपना हाथ पैर का मूवमेंट भी हमारे ब्रेन की वजह से होता है. हमारे पूरी बॉडी पे कंट्रोल किसका होता है? ब्रेन का होता है. तो सिमिलरली इन कंप्यूटर्स ऑल्सो जो भी काम कंप्यूटर करता है वो सारा काम CPU ही करता है, और इट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय द CPU. हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जितना भी काम होता है कंप्यूटर के थ्रू, ऑल दीज वर्क्स आर डन थ्रू द CPU. तो थर्ड स्टेप में
आफ्टर स्विचिंग ऑन द यूपीएस हमने अब लाइट की व्यवस्था कर ली कि अगर लाइट भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ भी होता है, तो जो यूपीएस है हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप है सीपीयू को ऑन करना, क्योंकि जब तक हम सीपीयू को ऑन नहीं करेंगे हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क, हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि जितनी भी काम हम उसको देते हैं करने को, सारे काम सबका प्रोसेसिंग सीपीयू ही करता है। तो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन दिस सीपीयू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम इस सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सी फॉर सेंट्रल, P for processing and U for unit, and which has an on off switch. So this same as UPS children, as you saw here, UPS had a on off button. Similarly this CPU also have on off button. So once you are working with computer you have to switch it on. काम शुरू करने से पहले हमें इस CPU को ऑन करना पड़ेगा। जब हम ऑन करेंगे तो हमारा CPU फिर हमारा कंप्यूटर वर्क करना शुरू करेगा। तो इन थर्ड स्टेप चिल्ड्रन यू विल स्विच ऑन द सीपीयू। उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव फोर्थ स्टेप। इन फोर्थ स्टेप चिल्ड्रन स्विच ऑन द मॉनिटर्स पावर बटन। एज यू नो चिल्ड्रन इवन मॉनिटर पे एक पावर बटन होता है, तो मॉनिटर हमको सीपीयू ऑन करने के बाद हमको मॉनिटर को भी स्विच ऑन करना है। इट ऑल्सो हैज़ एन ऑफ एंड ऑन switch, same as UPS and CPU. This monitor also have on off button, and this on off button is used to switch on the monitor. तो हम उसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेप में मॉनिटर को भी स्विच ऑन करेंगे। Then children, as soon as you switch on the monitor, the window welcome screen appears. एक स्क्रीन कंप्यूटर पे दिखाई देगा आपको, this स्क्रीन, और इस स्क्रीन को हम कहते हैं विंडो वेलकम स्क्रीन। अपीयर का मतलब प्रकट होना, दिखाई देना। तो हमें क्या दिखाई देगा? विंडो वेलकम विंडो स्क्रीन दिखाई देगा। अब वेलकम विंडो स्क्रीन पे चिल्ड्रन क्या होगा हमारे पास? हमें एक रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा। इस राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। कंप्यूटर विल आस्क फॉर द पासवर्ड, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को लॉक करके रखते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को हमारे परमिशन के बिना कोई और छू ना सके या उसका काम ना कर सके। और हम बहुत सारी ऐसी डिटेल और सीक्रेट्स उसके अंदर सेव करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो हमारा कोई भी यूज़ ना कर सके या देख ना सके। तो इसलिए हम उसको लॉक करके रखते हैं। अब हमको घर में घुसना होता है तो लॉक खोलना पड़ता है। उसी तरह हमको अगर कंप्यूटर में कुछ काम करना है तो वी हैव टू गिव द पासवर्ड। जब हम पासवर्ड देंगे चिल्ड्रन तो फिफ्थ स्टेप पे टाइप द पासवर्ड, हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद वी हैव अ बटन बिसाइड दिस स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स के हमारे पास एक एरो बटन होता है जिसे हम गो एरो कहते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारा ये जो कंप्यूटर है इसका स्क्रीन चेंज होकर के हमको दूसरी स्क्रीन मिलेगी या विंडो मिलेगा, जिसे हम कहते हैं इस विंडो पे हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन और डेस्कटॉप विंडो। एंड दिस इज़ द फाइनल विंडो। ये फाइनल स्क्रीन है जिस पे जो भी काम हम करना चाहते हैं वी कैन ईजिली डू इट। हम आराम से इस पर काम कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, फिर उसके बाद नेट है। तो जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। और डेस्कटॉप पे भी बहुत सारे आपको आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे जिससे जो भी काम हमको करना है वी कैन ईजिली परफॉर्म द वर्क। सो चिल्ड्रन दीज आर द 7 स्टेप। फॉलोइंग दीज स्टेप्स वी कैन ईजिली स्विच ऑन अ computer. Now children, we have revised how to switch on a computer and we have learnt also how to switch on a computer. So before working on a computer we should know all these steps. Now our computer is ready to work. हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करने के लिए तैयार है। Now whatever you want to do, you want to play game, you want to type something, you want to draw and color, आप कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको ड्रॉ कलर करना है तो आप पेंट खोल सकते हो। अगर इसके बाद कुछ लिखना है तो कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हो जिसमें देखिए आप इजीली टाइप कर सकते हो। और टेक्स्ट एडिटर डॉक्यूमेंट खोल सकते हो जिससे क्या टाइप कर सकते हो। और सो टिल नाउ वी वर लर्निंग हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर एंड वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। नाउ चिल्ड्रन, coming to our
टुडेज टॉपिक। अब आज के टॉपिक में चिल्ड्रन टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर, हमारा आज का टॉपिक है टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। चिल्ड्रन, इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू स्विच ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि एक बार जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके बाद काम करने के बाद वी नीड टू स्विच इट ऑफ ऑल्सो, और स्विच ऑफ करने के लिए भी हमको स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो स्टेप वाइज प्रोसीजर। एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर इज़ अ डेलिकेट मशीन। अगर हम इसको स्टेप वाइज बाय स्टेप फॉलो नहीं करके करेंगे तो ये हैंग कर सकता है, या और भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, खोलने में प्रॉब्लम आएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप बंद करना सीखेंगे। अब चिल्ड्रन, द वे वी केम फॉरवर्ड टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, ठीक हम उसका उल्टा करेंगे। हमने सबसे लास्ट में क्या किया था? सबसे लास्ट में हमने विंडो को ओपन किया था। अब यहाँ पे हम, जब विंडो हमारा खुल गया है, विंडो तक तो हमने ओपन किया था, अब हमारा विंडो खुल गया है। विंडो खुलने के बाद वी हैव स्टार्ट बटन। So children, as you know, just like there is a procedure for switching on a computer, just now I told you कि जिस तरह से we have certain steps to switch on the computer, procedure का मतलब होता है तरीका, method. We followed few steps or followed some method to switch on the computer. Similarly, we have certain steps by step procedure. We have certain step by step procedure to turn it off. इसको इट यानी कंप्यूटर, टर्न द कंप्यूटर ऑफ। तो लेट अस फाइंड आउट चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू कि व्हेन वी स्विच्ड ऑफ द ऑन द कंप्यूटर, वी गॉट विंडो स्क्रीन, वी गॉट डेस्कटॉप विंडो स्क्रीन हमको मिला था। अब ये जो डेस्कटॉप विंडो स्क्रीन है चिल्ड्रन, इसमें सबसे नीचे वी हैव स्टार्ट बटन। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके एक स्टार्ट बटन है। इस स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, इफ़ यू क्लिक हियर, तो यू विल गेट दिस मेन्यू, आपको ये प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमको ये सारे प्रोग्राम दिखेंगे। अब स्टार्ट मेनू में हमको जो भी प्रोग्राम खोलना है हम उसको यहाँ से खोल सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है? अभी तो हमको बंद करना है ना, अभी तो हम कंप्यूटर को बंद करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमको ये फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो हमको ये पूरा मेनू दिख गया। अब ये दिखने के बाद चिल्ड्रन, हमको नीचे शट डाउन दिखाई देगा, ठीक है। जब हम एक बार फिर क्लिक करेंगे शट डाउन पे तो विंडो शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हमको शट डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इस शट डाउन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है बंद हो जाएगी। तो पहले स्टेप पे तो वी विल स्विच ऑन टू, वी विल टेक फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 में वी विल स्विच ऑन द, वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन पे करेंगे तो वी विल गेट स्टार्ट मेन्यू हमको मिलेगा। अब उसके बाद वी विल क्लिक ऑन द शट डाउन, वहाँ पे हमको शट डाउन दिखाई देगा। सो यू विल क्लिक ऑन द शट डाउन। नाउ विंडोज़ शट डाउन्स एंड टर्न्स ऑफ द कंप्यूटर, वो विंडो बंद हो जाएगा और कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद चिल्ड्रन, और थर्ड स्टेप इज़ टर्निंग ऑफ द मॉनिटर। जैसा कि हम जानते हैं विंडो खुलने के पहले हमने क्या किया था? हम उल्टा आएंगे। विंडो खुलने के बाद का प्रोसीजर हम पीछे से करेंगे। तो सबसे पहले हमने विंडो के बाद मिलने के अपीयर होने के पहले हमने क्या किया था? हमने मॉनिटर के बटन को स्विच ऑन किया था। अब क्या करेंगे? स्विच ऑफ करेंगे। जब हम ऑन कर रहे थे, जब हम कंप्यूटर ऑन करने जा रहे थे तो हमने स्विच ऑन किया था, स्विच ऑन है वो। अब वो जब हम दोबारा उसको प्रेस करेंगे तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि विंडो वॉज ऑन, विंडो पे काम हो रहा था, स्क्रीन पे काम हो रहा था, मॉनिटर पे काम हो रहा था, तो वो ऑन है। तो अब हम उसको स्विच ऑफ एक बार प्रेस करेंगे वो स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मॉनिटर विल बी टर्न ऑफ, अब मॉनिटर बंद हो जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रन, फोर्थ स्टेप में कंप्यूटर का विंडो भी बंद हो गया और कंप्यूटर भी बंद हो गया और मॉनिटर भी बंद हो गया। अब नाउ फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में वी विल स्विच ऑफ द यूपीएस बटन। अब मॉनिटर बंद हो गया, उसके बाद हम यूपीएस बटन को बंद करेंगे। यूपीएस मतलब
एज आई टोल्ड यू हियर इज़ अ बटन, दिस इज़ यूपीएस, ये हमारा यूपीएस है और यहाँ पे जो छोटा सा बटन है इस बटन को हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 5th स्टेप में चिल्ड्रन, हमने उसके पहले पावर को ऑन किया था, उसके पहले एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे जब हमने मॉनिटर बंद किया था चिल्ड्रन, वैसे तो कंप्यूटर को हम ऑफ़ करते हैं तो उसका सीपीयू भी बंद हो जाता है, लेकिन आप मॉनिटर ऑफ करने के बाद एक बार सीपीयू भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद फिर हम यूपीएस बंद करेंगे और उसके बाद यूपीएस जब बंद हो जाएगा तो क्या बचा, अब मेन पावर सप्लाई जो यूपीएस के पहले हमने किया था, सबसे पहला स्टेप जो था, हम यहाँ जा कर के यहाँ पे ये जो स्विच हमें दिखाई दे रहा है प्लग के बगल में, इसको हम ऑफ कर देंगे। ये है हमारा स्टेप 5। यहाँ पे हम ये जो स्विच बोर्ड में स्विच है इसको बंद कर देंगे, वी विल स्विच इट ऑफ। अब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो गया। नाउ चिल्ड्रन, देयर आर द स्टेप्स दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो टू स्विच ऑफ or on a computer. Now get up and let us go to the computer room to try this. So children, whatever we study here, until or unless we do it or we try it, we won't be able to learn it properly. तो अब हमने switch off करना भी सीख लिया। अब हम अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो भी हमारे पास है उससे जो भी हमने यहाँ पे सीखा उसे करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें ये समझ में आएगा। सो these were the steps how to switch off the computer. Now children, अब there is a alarm for you all कि never switch off the computer directly. As I told in the beginning also, we should not switch off the computer directly. We should always follow certain steps which just now I told you before switching off on the computer or off the computer. तो जब तक, जैसा कि हमने बोला, computer is a delicate machine. If you want to switch on a computer, you have to follow certain steps, और वो भी steps एक के बाद एक जो स्टेप्स हमने सीखा वैसे ही करेंगे, हम किसी को भी आगे पीछे नहीं करेंगे। तो जिस तरह से हमने सीखा है उसी तरह से हम उसको करेंगे और फिर उसके बाद कंप्यूटर को स्विच ऑन या ऑफ करेंगे। सो चिल्ड्रन, दीज वर द स्टेप्स टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। लेट अस रिवाइज द स्टेप्स विच वी लर्नड टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। सो चिल्ड्रन, अब हमने जैसा कि यहाँ पे देखा कि बाय फॉलोइंग 7 स्टेप procedure we could switch on the computer। 7 step procedure follow करके we were able to switch on the computer। अब कंप्यूटर ऑन हो गया है, हम काम करेंगे कंप्यूटर पे। after doing some work on the computer, when our work is completed or finished, we will switch off the computer। so same as we followed different steps while switching on the computer, now also we will follow certain steps to switch off the computer। now turning off the computer, just like there is a procedure for switching on the computer, as I told you कि same as we have 7 step procedure for switching on the computer, we have some steps to switch off the computers also। switch off करने के लिए भी we follow certain steps। so now we are going to learn how to switch off a computer one by one by following these steps। so children, first step, after working on the computer, our desktop screen is open। from the desktop screen हम जो काम कर रहे थे उसको हमने close कर लिया। close करने के बाद we will come to the home screen। हम वापस home screen पे आएंगे, desktop window पे आएंगे, वहाँ आकर के हमारे पास एक बटन है जिसे हम start button कहते हैं। there is a small button just at the bottom on left hand side, on your left hand side bottom of the computer screen। you will click on that button and you will get start menu। हमें start menu दिखाई देगा और वहीं पे हमें दिखाई देगा shut down का ऑप्शन। हम अब जो शट डाउन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा, विंडो शट डाउन हो जाएगा और टर्न्स ऑफ द कंप्यूटर को वो बंद कर देगा। और उसके बाद फिर मॉनिटर बचा है। जैसा कि मैंने बताया, जब हमने मॉनिटर ऑन करने की बात बताई थी तो आई टोल्ड यू कि देयर इज़ अ बटन ऑन द
वन साइड ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के एक साइड में एक छोटा सा बटन होता है, अगर हम फर्स्ट टाइम उसे प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन गेट्स ऑन और सेकेंड टाइम प्रेस करते हैं तो इट गेट्स ऑफ। तो अब हमने एक बार किया है तो कंप्यूटर का स्क्रीन या मॉनिटर ऑन है, अब दोबारा जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो अब हमें ऑफ करना है, यू विल स्विच ऑफ दैट बटन, प्रेस दैट बटन, द मॉनिटर विल ऑटोमेटिकली गेट स्विच्ड ऑफ। उसके बाद फोर्थ स्टेप चिल्ड्रन, हमने मॉनिटर ऑन करने से पहले यूपीएस को ऑन किया था, तो अब मॉनिटर को बंद कर दिया तो हम यूपीएस को भी बंद करेंगे। नाउ स्विच ऑफ द यूपीएस बटन, इसीलिए क्योंकि हम हमेशा यूपीएस बटन को भी बंद रखते हैं, तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसको भी ऑन करना पड़ता है। तो हियर इन फोर्थ स्टेप यू विल स्विच ऑफ द यूपीएस बटन। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, देयर इज़ अ स्मॉल बटन ऑन द यूपीएस, ऑन ऑफ बटन जिसे कहते हैं, इस बटन को आप ऑफ करोगे, यू कैन सी इट इज़ स्विच्ड ऑफ। एंड यूपीएस का मतलब आपको पता है, यू मीन्स अनइंटरप्टेड, पी मीन्स पावर, एस मीन्स सप्लाई। दिस इज कॉल्ड यूपीएस, मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू वर्क विदाउट एनी इंटरप्शन। जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं यूपीएस की वजह से बिना रुके वो काम चलता रहता है, चाहे लाइट रहे या चली जाए। तो इट सपोज द कंप्यूटर वाइल वर्किंग बाय सप्लाइंग द पावर, बाय गिविंग द पावर सप्लाई। उसके बाद चिल्ड्रन फिफ्थ स्टेप, स्टेप 5, स्विच ऑफ द मेन पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक बोर्ड का मतलब जहाँ से हमने पावर सप्लाई किया था। तो हमने जब हमको ऑन करना था तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड को ऑन किया था, लेकिन जब ऑफ करेंगे तो सबसे आखिर में इलेक्ट्रिक बोर्ड से हम स्विच को ऑफ करेंगे। सो चिल्ड्रन, अगर आपने रियलाइज़ किया, इफ़ यू कैन फाइंड आउट कि वॉट एवर द वे वी रीच द कंप्यूटर और द वे वी स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर, उसका ठीक उल्टा हमने किया है। जहाँ से हम गए थे फिर उसका उल्टा आए हैं। जो काम हमने सबसे लास्ट में किया था वो काम हमने पहले किया है, और जो सबसे पहले किया था वो लास्ट में आके बंद किया है। तो सबसे पहले हमने स्विच ऑन किया था स्विच बोर्ड को, लेकिन अभी इस बार हम सबसे आखिर में स्विच ऑफ करेंगे। तो दीज वेर द 5 स्टेप्स। वाइल स्टार्टिंग द कंप्यूटर वी फॉलोड 7 steps, and while switching it off we followed 5 steps. So using these steps children, we can easily switch on and switch off the computer. So children, these are the steps that you should always follow to switch on or off a computer. Now get up and let us go to the computer room to try this. अब आपको खोलना भी आ गया, बंद करना भी आ गया, आप इसे करके प्रैक्टिस करेंगे। तो कंप्यूटर तभी आता है जब हम उसे करते हैं। Until or unless you switch on the computer or switch off the computer independently or yourself, you won't be able to learn. तो इस तरह से children, today we have learned how to switch on and off a computer. Now the most important thing children, कि as I told before also, never switch off the computer directly. ऑन तो डायरेक्टली होगा ही नहीं, आपको वहाँ तो आपको अगर डायरेक्टली करोगे तो नहीं होगा जब तक आप स्टेप फॉलो नहीं करोगे। और ऑफ डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऑफ करते हैं तो हमारा कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, हैंग कर सकता है, या फिर उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो इन दिस वे चिल्ड्रन, आई होप you all have understood the chapter and you can switch on and switch off the computer yourself. So children, go through the chapter and read it and try to learn all the difficult words which we have come across in the chapter. So children, with this we have come to the end of the chapter. Before ending the chapter children, let us revise some points which we are given at the end of the chapter, like recapitulation. These are the points which we have learnt in the chapter and understood also. So let us recapitulate. After reading the chapter, I know these points. So children, after reading the chapter, I have understood and I agree with these points. So that is why here two blocks are given. One is agree and the other is disagree. So if you
think you have learned these things from the chapter, you will agree, otherwise you will disagree. So first point is, I know that to turn on off a computer we should follow a step-by-step procedure. So children, just now we have understood that in order to switch on the computer we should follow step-by-step मेथड, ना ही ऑन करने के लिए बल्कि ऑन और ऑफ करने के लिए दोनों के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा. सो दिस इज राइट. आई नो दैट वी शुड टर्न ऑफ अ कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर फिनिशिंग द वर्क. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे टर्न ऑफ द कंप्यूटर प्रॉपरली का मतलब है यू हैव टू स्विच इट ऑफ बाय फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप मेथड आफ्टर फिनिशिंग द वर्क. जब आपका काम हो जाता है और आपको कंप्यूटर बंद करना है तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करके ही कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना है. नाउ आई fully know that a computer should not be turned off directly. This also we have understood that we should not switch off the computer directly. So children, this is all for today's class. Thank you, and we will meet again and do the book exercise of these chapter.